Good morning and greetings to all. Welcome to today's online celebration of International Labour Day with its theme Labour Employability in COVID Pandemic Situation, Strategies and Challenges. Under the joint auspices of Department of Law, Faculty of Education, Faculty of Management Studies, University College of Commerce and Management Studies, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan. Your active participation is important throughout the session. I request everyone to mute your mic to avoid background noises that may distract you from listening to the thoughts shared. Mohanlal Sukhadia University has always been active in such constructive works by creating appropriate educational environment. Under the dynamic and competent leadership of Honorable Vice Chancellor Professor Amrika Singh Sir, online seminars and discussions have been organized by constituent colleges and university departments of this university, especially to promote constructive discourse and offer possible suggestions and solutions to ongoing issues. In the words of Martin Luther King Jr., all labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence. To honor the struggles and gains made by workers and laborers and to pay tribute to the contributions of workers across the world, the first day of May is observed as International Labour Day. The day is also called May Day or International Workers' Day. It is observed in countries such as Cuba, India, China, among others. नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों के अनुचरों में स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। सुप्रभात। मानव के हृदय में एक दैवीय चेतना और प्रकाश विद्यमान है। उस दैवीय प्रकाश को सादर नमस्कार एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रमिकों की एकजुटता उपलब्धियों के उत्सव का प्रतीक है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को प्रोत्साहित करने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस वैश्विक एकता का परिचायक है। विश्व के लिए यह बहुत बड़ा उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस हर साल व्यक्ति के श्रम द्वारा कार्य की उपलब्धियों के लिए आयोजित किया जाता है। श्रम को राहत प्रदान करना, बेहतर जीवन में सक्षम, कार्यों में बेहतर निपुणता एवं सुधार, उचित प्रबंधन, स्वयं के विकास से अभिप्रेरित उद्देश्य की अनुपालना है। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं उद्देश्यों पर दूरदर्शिता रखते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान के संघटक, विधि विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, शिक्षा संस्था मोहनलाल विश्वविद्यालय उदयपुर, प्रबंधन अध्ययन संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कोविड महामारी में श्रम रोजगार स्थिति, रणनीति एवं चुनौतियों का वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ। Labor Day or International Workers' Day is celebrated annually on 1st May to celebrate the working class and laborers across the world. Socialist and labor unions celebrate this day by organizing programs to improve wages and working conditions of the workforce. Before a formal Labor Day came into place, deaths, injuries, and dangerous working conditions. During the rise of industrialized while observed as an ancient northern hemisphere spring festival, May 1st became associated with the labor movement in the late 19th century of workers. For a long time after 1923, laborers continued For a long time after 1923, laborers continued to struggle for their fundamental rights which ensured them proper wages and better health conditions. Until then,
Every organization that had been formed to help them voice their concerns had failed. Finally, they decided to go on a strike, hoping their voice would be heard by the government. In 1950, labor laws were finally introduced in the Indian Constitution, stipulating workers' rights, promising fair wages and safer working conditions, and ensuring access to health care. Now there are multiple articles in the Indian Constitution pertaining to labor rights. Today, over 94% of India's working class population is employed in the unorganized sector, which is an all-encompassing category that includes kirana store owners, handicraft and handloom workers, rural traders, farmers and artisans, among others. May Day is used to provide relief to the labor by which they can be able to live a better life and cultivate work. The International Labour Day is extremely significant today as healthcare workers man the front line in the war against coronavirus. Making this year's International Labour Day more significant is the fact that the coronavirus hit world is undergoing crucial shifts, especially in the socio-economic aspects. In such drastic times, only a segment of workers remain active due to how indispensable their services are. From domestic helpers and housekeeping to nurses, doctors, health workers and security guards keeping us safe, today is a day to acknowledge and be grateful for their contribution to society. श्रम ही एकमात्र प्रार्थना है जिसका प्रकृति जवाब देती है। मानवता के उत्थान करने वाले सभी श्रम की गरिमा का महत्व है। इसे श्रम साध्य उत्कृष्टता के साथ सम्मान किया जाना चाहिए। मजदूरों का किसी भी देश के विकास एवं उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मजदूरों के बिना किसी भी देश में आर्थिक और औद्योगिक ढांचे का निर्माण की कल्पना करना संभव नहीं है। मजदूर सभी काम की धुरी होने के साथ मानवीय श्रम का आदर्श उदाहरण भी होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। राष्ट्र नव निर्माण में श्रमिक बहुमूल्य भूमिका निभाता है। श्रमिकों के परिश्रम, दृढ़ निश्चय, निष्ठा का दिवस है। उद्योग, बांध, सड़कें, तकनीकी शिक्षा, इमारतें आदि के नव निर्माण में श्रमिक अपने फल की इच्छा नहीं करता है। श्रमिक अपने पसीने से मिट्टी को सोना बनाता है। हर व्यक्ति में अंतर्निहित अपार आत्मज्ञान, संभावना, क्षमताओं का भंडार है। आवश्यकता है शिक्षा के स्पर्श से परिमार्जित करने की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रमिकों में श्रम की सामाजिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता, वैश्विक सूचनाएं, संदेश, स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन, लक्ष्य के प्रति समर्पण, एकाग्रता, अधिकारों एवं अवसरों का ध्यान एकत्रित करने के लिए मनाया जाता है, जो विश्व कल्याणक है। The COVID-19 pandemic has led governments, employers, workers and the general population to face unprecedented challenges in relation to the virus and the many effects it has had on the world of work. Strategies to strengthen national occupation, safety and health systems to build resilience and create employment and employability in order to face crisis now and in the future need to be discussed for implementation. For this, joining us today is an eminent panel whose members have been working in different sectors and researching the same. With the blessings of Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra Sir. Gracing the occasion is Chief Guest Shri Tikaram Juli, Honorable Labour Minister, Government of Rajasthan, whose benign presence gives this event more substance and validation where cause of labour and labourers is celebrated. With us is guest of honour Mrs. Malini Trivedi, who is a judge from Meerut, Uttar Pradesh. The special guests are Shri Jagdish Raj Shrimani, National Senior Secretary, INTUC, and Shri U.S. Tomar, former Registrar, Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh. With the best blessings of patron of Mohanlal Sukharia University, Honorable Vice Chancellor Professor Amrika Singh Sir, joining the panel are Professor P.K. Singh, Dean, University College of Commerce and Management Studies, Professor Hanuman Prasad, Director, Faculty of Management Studies, and Dr. Rajshri Chaudhary, Dean, University College of Law, Mohanlal Sukharia University. We at Mohanlal Sukharia University extend a warm welcome to all. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी नहीं बनना पड़े। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ अरावली की सुरम्य पहाड़ी क्षेत्र में स्थित समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों से सुंदर परिदृश्य के साथ संपन्न उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कोरोना वायरस महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, कोविड से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करना, युवाओं में टीकाकरण जागरूकता अभियान को प्रोफेसर अमेरिका सिंह, माननीय कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवता के विकास को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। वर्तमान संवेदनशील विषयों पर विचारों के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस उत्सव के आयोजन में आदरणीय श्री कलराज मिश्र साहिब, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं माननीय कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, मुख्य अतिथि माननीय श्री टीकाराम जी जूली, माननीय श्रम मंत्री राजस्थान सरकार, अति सम्मानित अतिथि श्रीमती मालिनी त्रिवेदी, न्यायाधीश मेरठ उत्तर प्रदेश, विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश राज श्री मालिनी, राष्ट्रीय सचिव इंटक, विशिष्ट अतिथि श्री यूएस तोमर, पूर्व कुल सचिव अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रोफेसर पीके सिंह, अधिष्ठाता यूसीसीएमएस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, निदेशक प्रबंधन संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, डॉक्टर राशि चौधरी, अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर एवं विश्वविद्यालय परिवार, अधिष्ठाता गण, संकाय सदस्य, प्राध्यापक गण, शोधार्थी गण, मीडिया से जुड़े प्रबुद्धगण आज के कार्यक्रम के ऐतिहासिक पलों के साक्षी हैं। सभी गणमान्य से कुलगीत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की परंपरा का निर्वहन करने हेतु यथास्थान खड़े होने का अनुरोध है। I request you all to stand in your respective places for full beat of Mohanlal Sukhadia University. I now request Honorable Vice Chancellor Sir to read out the preamble of the Indian Constitution. Sir. भारत का संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल कर्तव्य 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजित रखे और उसका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राण मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कोविड महामारी के कठिन समय में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर परिवार के अमूल्य सदस्य और श्रमिक वर्ग के सदस्य अमृत शांति में लीन हो गए हैं। दिवंगत आत्माओं को स्मरण करते हुए सभी गणमान्य से 2 मिनट मौन धारण करने का अनुरोध है। ओम शांति शांति शांति। I will now invite Honorable Vice Chancellor Professor Amrika Singh Sir, whose initiative has made this event possible, for the welcome address. Professor Amrika Singh Sir. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्वानगण कोविड पैंडेमिक का सिचुएशन, इससे संबंधित इत्यादि विषयों पर अपना विचार रखेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री टीकाराम जूरी साहब, मिनिस्टर श्रम विभाग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। माननीय मंत्री जी का हम विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं तथा इंटरनेशनल लेबर डे पर आपको हम बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। इसी क्रम में स्पेशल गेस्ट जस्टिस मालिनी त्रिवेदी जी, स्पेशल गेस्ट श्री जगदीश राज श्रीमाली जी, स्पेशल गेस्ट श्री यूएस तोमर जी
आप सभी लोगों का हम विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जो चारों फैकल्टी कॉलेज के नाम से हमारे यहाँ प्रख्यात है, इनके सभी डीन प्रोफेसर पीके सिंह, राशि जी, हनुमान प्रसाद जी, प्रोफेसर सुथार जी को हम बधाई देते हैं कि आप लोगों के प्रयास से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सन 1962 से दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा जगत में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और विश्वविद्यालय का छठा चार जिला है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही और उदयपुर। चारों जिला टीएसपी एरिया में और इस विश्वविद्यालय में लगभग 1,90,000 छात्र, 190 एफिलिएटेड कॉलेज और लगभग अभी तक 62 लाख एलुमनाई यहाँ से इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, इतने अभिभावक हैं। राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण मल्टी फैकल्टी विद्यालय है, जहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा पाठ्यक्रम, लगभग वर्तमान में 11 फैकल्टी, लगभग 50 डिपार्टमेंट इस समय क्रियाशील हैं और लगभग मुझे 1 साल 9 महीना यहाँ ज्वाइन किया हुआ। हमने आने पर यहाँ पर विशेष रूप से जो भी हमारा ज्ञान था, जो अनुभव था, वो पूरा हम राजस्थान को दे रहे हैं और आने के बाद हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अक्षरशः सम्मिलित किया। जहाँ तक विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र है, रिसर्च और परीक्षाएं समय से क्लास हो, समय से रिजल्ट निकले, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय का और नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे उद्योग का होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, उसके अंतर्गत भी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इसका सराहना भी लगभग राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। उसके बारे में हम कुछ अपने अतिथि या जो हमारे यू चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सैटेलाइट चैनल से जुड़े हैं, जो इस प्रोग्राम के लगभग 17 देशों में सीधा प्रसारण हो रहा है सैटेलाइट चैनल के माध्यम से, उनको हम उनके सामने अपनी बात हम रखना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय ने लगभग 9 महीने में जो CSR के अंतर्गत कार्य किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कार्य किया है, जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए कार्य किया है, हमारा TSP एरिया है और 1,90,000 छात्रों में लगभग 48,000 छात्र छात्राएं SC और ST कैटेगरी के हैं। इनके लिए हमें, इनके वेलफेयर पर हमें विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं। इसके अंतर्गत इस विश्वविद्यालय ने पिछले 9 महीने में 155 वेबिनार एक साथ 25 विषयों पर, 171 वेबिनार एक साथ एक ही दिन लगभग 50 विषयों पर और 144 देशों में 17 भाषाओं में इसको प्रसारण करने की क्षमता हासिल किया और ये राष्ट्रीय कीर्तिमान भी रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो अतिरिक्त क्या कार्य कर रहा है, समाज के लिए क्या कार्य कर रहा है, जिससे इस विद्यालय का कोई रिश्ता नहीं है। हम सरकार के सभी कार्यक्रमों में, उनके सभी कार्यक्रम हम विश्वविद्यालय को लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना पीरियड में हमने 1,90,000 मास्क लगभग 4 जिलों में वितरित किए, 5,000 साड़ी, नए वस्त्र का वितरण किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन का हमने कई प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग जो है विश्वविद्यालय जो है सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं में अपना सहभागिता दे रहा है और कल 30 अप्रैल को हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों ने सब मिल करके, क्योंकि जो भी कार्य हो रहा है उसमें सभी लोग का सहयोग है और शिक्षक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, अनुयायी है, छात्र हैं, हमारे डीन है, सभी का सहयोग से जो कार्य हो रहा है और उसकी प्रशंसा तो आप लोग देख ही रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है।
और शायद हम पूरे देश में पहले ऐसे विश्वविद्यालय हैं कि जो कोरोना पीरियड में अपने शिक्षकों के सहयोग से उनके 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 मनोबल को देखते हुए उनका जो विचार था उनका सम्मान करते हुए एक मीटिंग कल आयोजित की गई थी और सब सम्मत से 1,31,00,000 रुपए हम लोगों ने राज्य सरकार को कोविड में जीवन रक्षक दवाइयां और उपकरण करने के लिए हम लोगों ने कल घोषणा किया और राजभवन को सरकार को हम लोग पत्र भेज दिया है। लेकिन इसको कई फेज में देने की बात थी। तो प्रथम फेज में हम 1,11,00,000 रुपए राज्य सरकार को अपने आंतरिक स्रोतों से दे रहे हैं। हमारा जो विश्वविद्यालय है प्रत्येक विभाग लगभग आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। वो अपना कोर्स प्रारंभ करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वो अपने जो है स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रारंभ कर रहे हैं। आंतरिक स्रोतों का आर्थिक स्थिति हमारे सारे विभाग की बहुत मजबूत हो रही है और यही कारण है कि कल हमने राज्य सरकार को 1,11,00,000 रुपए सहायता के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह धनराशि जल्दी सरकार को चली जाएगी। हमारा जो विश्वविद्यालय है, जो आदिवासी छात्र हैं, कोरोना पीरियड में 150 छात्रों को जो श्रमिक वर्ग से थे, उनके अभिभावक श्रमिक थे, 150 छात्रों की हमने पूरी फीस माफ कर दी और 15% फीस सभी छात्रों की हमने कोरोना पीरियड में हमने माफ किया है। तो इस तरह का विश्वविद्यालय जो है समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। लेकिन अब जो सेकेंड फेज आया है ये हमारे लिए चुनौती का है और इस चुनौती के समय में हम लोगों ने पहला वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। जहां तक वेबिनार कार्यक्रम या जागरूकता का प्रोग्राम है, शायद ही हमसे आगे कोई विश्वविद्यालय प्रदेश या देश का होगा। और पिछले 9 महीने में लगभग अगर एवरेज निकालें, हमारे सारे शिक्षक कर्मचारी मेरी बात को सुन भी रहे हैं, एवरेज निकालें तो प्रत्येक हफ्ते में एक वेबिनार एवरेज आता है। तो इस तरह हम लोग जागरूकता का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तरह तरह के CSIR के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं। आज लेबर दिवस पर पूरे देश की जो संख्या है लगभग उसका तिहाई, अब ऐसे इसको हम समझ सकते हैं कि लगभग 45 करोड़ के आसपास हमारी जो जनसंख्या है वो श्रम के कैटेगरी में आता है और उनको एजुकेशन की जानकारी नहीं है, शिक्षा की जानकारी नहीं है और श्रम करते हैं। परिश्रम का मतलब होता है ज्ञान के साथ कोई श्रम करते हैं। हम सभी लोग परिश्रम करते हैं, लेकिन श्रम करने वाले जो हैं उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि न उनके पास स्किल्ड है, सिर्फ उनके पास श्रम है। और श्रम करने वाले लगभग 45 करोड़ इस देश में। आप उनके बारे में सोचिए कि इस असंगठित क्षेत्र में उनके ऊपर कोरोना पीरियड में इस जो महामारी चल रही है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, हमारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारे माली हैं, डेली वेजेस की भी लोग आते हैं। सबसे पहले मैंने उन्हीं के ऊपर केंद्रित किया और सबका ठेकेदारों के माध्यम से श्रम विभाग में उनका रजिस्ट्रेशन कराया। श्रम विभाग चाहे श्रम मंत्रालय, चाहे राज्य सरकार का हो या भारत सरकार का हो, और सभी शिक्षकों को चाहिए कि श्रम विभाग का क्या इस समय योगदान है, उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, सबको अध्ययन करना चाहिए। और श्रमिकों के लिए बहुत उनके लिए कानून भी बन गया है, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सी स्कीम है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कीम है, शादी ब्याह के लिए स्कीम है, उनके लिए योजनाओं के लिए स्कीम है, बहुत से स्कीम है जिसको मुझे थोड़ा सा ज्ञान उत्तर प्रदेश से आया है, वहां से भी हमने इस काम को किया है। तो माननीय मंत्री जी को से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो TSP एरिया में है और TSP एरिया जो है राजस्थान का बहुत ही संवेदनशील एरिया है, जहां पर मैक्सिमम अधिकतम सिर्फ श्रमिक लोग हैं। और ये श्रमिक की जो विशेषता है कि वो अपने स्थान को माइग्रेट छोड़ नहीं सकते, बहुत कम छोड़ते हैं। वो कभी लेबर करने के लिए पड़ोसी राज्य में चले जाएंगे, शहर में आएंगे,
फिर एक दो दिन कार्य करने के लिए फिर अपने गांव में आ जाते हैं। तो ऐसे में श्रम विभाग के जो भी योजनाएं हैं सर, आप हमको उसके बारे में आप हमको बताएं, अपनी जानकारी दें, और हम राज्य सरकार का अपने विश्वविद्यालय के साथ विश्वविद्यालय के सहयोग से आपके सारी जितनी योजनाएं हैं सबको हम 4 जिलों में लागू करने का हम आश्वासन देते हैं, क्योंकि हमारे पास जनशक्ति है, शायद ही इतना बड़ा जनशक्ति किसी विभाग के पास होगा। हम आपकी हर योजनाओं को बहुत अल्प समय में, बहुत कम समय में हम 4 जिला के श्रमिकों तक पहुंचाने में सक्षम रखते हैं। तो ये हमें भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम हमारे जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं, जो भी कार्य होता है बड़े मन से करते हैं। और आप इसका माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर आप फीडबैक लेना चाहते हैं तो आप उदयपुर के जिलाधिकारी या जो भी जिला प्रशासन है उससे आप फीडबैक ले सकते हैं कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वो अलग से अपना पहचान बना रहा है, और पहचान हम बनाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। तो हमारी पहचान बहुत पहले से है, और इसी क्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी होते हैं, चाहे वो लेबर डे हो, फॉरेस्ट का हो, वीमेन डे हो, जो भी डे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर, सबको हम सेलिब्रेट करते हैं। और उचित प्लेटफॉर्म पर, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जहां जरूरत होती है, जहां से उसकी ओरिजिन हुई है, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई उस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, यूनेस्को तक भी पहुंचाते हैं, हर जो इंटरनेशनल बॉडी है वहां तक हम पहुंचाते हैं कि राजस्थान भी पीछे नहीं है, आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम मनाते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो ये लक्ष्य है, ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कीर्तिमान स्थापित करे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाए। तो बहुत से कार्य हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, लेकिन उसी के कड़ी में इंटरनेशनल डे भी है जिसको हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं पिछले 9 महीने से। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दिवस को भी हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमें राष्ट्रीय पहचान भी बनाना है। शायद ही पिछले 9 महीने में ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय डे, ऐसा कोई राष्ट्रीय दिवस या राज्य स्तर पर कोई दिवस ऐसा हो। अभी हम लोगों ने राजस्थान दिवस को बहुत व्यापक तरीके से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया था, जिसमें माननीय कुलपति महोदय, गवर्नर ऑफ राजस्थान भी सम्मिलित हुए थे, स्पीकर साहब भी थे, बहुत से ऐसे डिग्निटी थे, और हम लोगों ने मंच से विश्वविद्यालय ने इस काम को किया था, और करीब 9 विश्वविद्यालय को साथ में जोड़ा भी था। तो कहने का मतलब ये है कि हमको सारे शिक्षकों से हमारा यही अनुरोध है कि हमारा कार्य तो ठीक है, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, परीक्षा लेते हैं और एग्जाम लेते हैं, फिर उसका हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, कन्वोकेशन करते हैं, डिग्री देते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारा नैतिक जिम्मेदारी है जो हम लोग जिसका निर्वहन कर रहे हैं। तो हमारे शिक्षकों से भी अनुरोध है कि श्रम विभाग से आप संपर्क बनाएं। आपके विभाग, हर जिले में आपके श्रम विभाग के ऑफिस हैं, उनको जो कार्य हो रहे हैं, जो हम सेस काट करके हम श्रम विभाग को जमा भी करते हैं, इनकी जो योजनाएं हैं और उनको हम तहे दिल से हम उसमें सहयोग प्रदान करें, उनका कार्यों में हम अपनी सहभागिता दें, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं जहां पर श्रमिकों की संख्या अधिक है। हमें सभी लोगों को चाहिए, विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं, अलुमनाई जो सुन रहे हैं मेरी बात, जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, आप मन से हमें श्रम विभाग का सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसी क्रम में हमारे विश्वविद्यालय ने बहुत से 9 महीने में बहुत से काम किए हैं, जिनका कि हम यहाँ पर समय कम होने के कारण अपनी बात को संक्षिप्त में रखना चाहते हैं कि हमारे जो लेबर हैं उनके लिए भी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बहुत से कोर्सेस प्रारंभ कर दिए हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरुआत हो गई है। अभी हमारे प्रोफेसर हनुमान प्रसाद के निर्देशन में लगभग 300 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग करा करके, उनको स्किल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग करा करके, और ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को उनको हमने भेजा कि कैसे पेट्रोल भरा जाता है, कैसे एनर्जी का सेविंग किया जाता है, कोई आपदा आ जाती है तो कैसे मन में,
इसका पूरा विधिवत 1 महीने तक ट्रेनिंग चली है। तो इस तरह के कार्य हम लोग कर रहे हैं और आज ही हमने 10:30 बजे जिला प्रशासन को 22 वॉलंटियर दिए हैं, आज ही दिए हैं, हमने रवानगी उनकी किया है, उनको दिया है कि आप इनको ले जाए। उनका अनुरोध भी था कि सैनिटाइजर, मास्क बहुत से वितरण करना है। लोग सामने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं डर के बारे, उनको एसओपी का पालन करते हुए उनको ट्रेनिंग करके आज ही हमने जिला प्रशासन को दिया। तो सर इस तरह के कार्य हम लोग कर रहे हैं विश्वविद्यालय में और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने विश्वविद्यालय को शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाएं और इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग है। हमारे शिक्षक कर्मचारी सभी लोग हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनके सहयोग की हम सराहना करते हैं। तो एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, जो भी उपलब्धि होगी इसमें हमारे सारे विश्वविद्यालय की सहभागिता होगी। और राज्य सरकार से भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे जो अच्छे कार्य हैं उनका आप सराहना करें और जो कार्य देना चाहते हैं हमें दीजिए, हम तहे दिल से उसका कार्य को करेंगे। विश्वविद्यालय ये आश्वासन देता है। और इन्हीं शब्दों के साथ समय की बाध्यता है, हम पुनः माननीय मंत्री श्री टीकाराम जूली जी, स्पेशल गेस्ट माननीय त्रिवेदी जी, श्री जगदीश राज श्रीमाली जी और श्री यूएस तोमर जी का हम विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं पुनः अभिनंदन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का आभारी हैं कि आपने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करके इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। Under your able guidance, Mohanlal Sukharia University is setting an inspiring example for all to follow. Thank you, sir. परम आदरणीय श्री कलराज मिश्र साहिब, माननीय राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान द्वारा श्रमिक दिवस 1 मई 2021 कार्यक्रम में शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है। मैं अक्षरश इसका वाचन कर रही हूँ। कोई भी मानवीय त्रुटि होने पर क्षमा प्रार्थी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की देश और प्रदेश वासियों को मेरी हार्दिक बधाई। कार्यक्रम में माननीय श्रम मंत्री राजस्थान श्री टीकाराम जूली जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, न्यायाधीश मेरठ श्रीमती मालिनी त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय सचिव इंटर श्री जगदीश राज श्रीमाली जी, पूर्व कुल सचिव अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय श्री यूएस तोमर जी, अधिष्ठाता UCCMS प्रोफेसर PK सिंह जी, निदेशक प्रबंधन संकाय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय डॉक्टर राष्ट्रीय चौधरी जी और ऑनलाइन जुड़े सभी गणमान्य को शुभकामनाएं। आज का यह दिन श्रम की गरिमा से ही नहीं जुड़ा है, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों में निहित श्रम के आदर्श मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरित करने का भी है। मैं यह मानता हूँ, एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास अपनी भाषा, विवेक और मानवीय मूल्यों के साथ श्रम के सम्मान के प्रति गहरी आस्था हो। आज के दिन को मैं श्रमिकों के परिश्रम, दृढ़ निश्चय, निष्ठा की व्यंजना का प्रतीक पर्व मानता हूँ। श्रमिकों का शोषण अपराध ही नहीं, मानवता की हमारी संस्कृति का भी एक तरह से उपहास है। इसलिए कि कोई भी समाज, संस्था, उद्योग वहां काम करने वाले श्रमिकों से खड़ा नहीं होता, निरंतर विकसित होता है। इसलिए श्रमिकों का सम्मान हम सभी का पुनीत दायित्व भी है। भारत सरकार ने श्रमिकों के सर्वांगीण विकास और कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम की भी पहल की है। इसके जरिए श्रमिकों के कौशल विकास के साथ उनके हित संरक्षण का विशेष ध्यान दिया गया है। यह सुखद है कि कुछ समय पहले संसद में पारित श्रम कानूनों को भी समयानुकूल बनाने का महत्वपूर्ण कार्य केंद्र सरकार ने हाथ में लिया है। इससे देश के 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर वेतन का अधिकार प्रदान किया जा सका है। भारतीय संस्कृति में मंडूक उपनिषद में सत्यमेव जयते के जरिए सत्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। आज के इस दिन मैं देश और प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ कि इसी तरह हम सभी श्रम की गरिमा से जुड़ी
संस्कृति की स्थापना के लिए भी कार्य करें। यह सुखद विषय है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय शिक्षण के साथ अपने सामाजिक दायित्वों के लिए भी समर्पित है। शिक्षा, सेवा और श्रम से जुड़े प्रयासों के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह, विधि विभाग, शिक्षा संकाय, प्रबंधन अध्ययन संकाय, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन संकाय महाविद्यालय और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि लैंगिक भेदभाव को दूर करके श्रम के सम्मान और श्रम के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की पुनः बधाई एवं स्वस्ति कामना। माननीय राज्यपाल, आपके अभिप्रेरित संदेश के लिए विश्वविद्यालय परिवार हृदय से धन्यवाद प्रकट करता है। Labor was the first price, the original purchase money that was paid for all things. It was not by gold or by silver, but by labor that all wealth of the world was originally purchased. To hear of the challenges faced day to day by laborers and frontline workers, I request our chief guest, respected Labour Minister Shri Tikaram Juli Sahab, to share his insight with us. Sir. नमस्कार। सम्माननीय अमेरिका सिंह जी, श्रीमती मालिनी त्रिवेदी जी, जगदीश राज सिरमाली जी, यूएस तोमर जी, प्रोफेसर पीके सिंह जी, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, डॉक्टर राजश्री चौधरी जी और सम्माननीय सभी इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम तो आप सब लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय धन्यवाद का पात्र है कि आपने आज इतना शानदार आयोजन रखा है मजदूरों के हितों के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा, पहले धन्यवाद दूंगा, अभी मेरे को जानकारी मिली आपने लगभग 1.25 करोड़ रुपए कोविड में मदद के लिए दिए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लगातार CSR के माध्यम से भी आपकी जो गतिविधियां रही हैं और लोकल लोगों के सुरक्षा के लिए आपने वो दी हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ चूंकि मैं पूरे समय आपसे जुड़ता, आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा विश्व के अंदर सबसे पहली ऐसी योजना जो राजस्थान के अंदर शुरू हो रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी मजदूर दिवस के अवसर पे कर रहे हैं। और एक ऐसी योजना है जिसके अंदर जो गरीब हैं उनको तो छूट है ही, जो छोटे किसान हैं उनको तो छूट है ही, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको तो छूट है ही। इसके साथ साथ कोई भी, पूरे राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपए के अंदर 5 लाख रुपए का अपने पूरे परिवार का 1 साल का बीमा करा सकता है, जिसके अंदर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल उसके अंदर ज्यादातर कवर है। उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी आज के दिन कर रहे हैं, तो इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहूंगा हमारे उपकुलपति महोदय को कि निश्चित तौर पर आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद में भी मजदूर को हम मजदूर समझते हैं। हम वकील को वकील के साथ साथ उसको सम्मान देते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर तो समझते हैं लेकिन उसको सम्मान देते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर समझते हैं लेकिन उसको सम्मान देते हैं, लेकिन मजदूर को हम आज भी मजदूर ही समझते हैं। और मजदूर को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जो खड़ी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री चल रही है, इतने बड़े बड़े हाईवे जो चल रहे हैं, वो मजदूर का खून पसीना उसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग या हमारा समाज आज भी उनको उतना सम्मान नहीं देता है जितना उनका देना चाहिए। आज भी हम ये देख रहे हैं कि मजदूर अपनी मजदूरी के लिए लड़ाइयां लड़ रहा है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है सिर्फ अपनी मजदूरी पाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। ये स्थिति आज भी मजदूर की है। मैं कहना चाहूंगा
कि हमारा इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और खास तौर से एक ऐसे इलाके के अंदर, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जो सुरग है वो उदयपुर है, राजस्थान का कश्मीर है वो उदयपुर है। और आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं यहाँ पे हैं। चाहे स्टोन की बात करें, चाहे सीमेंट की बात करें, या टूरिज्म की बात करें, तो एक बहुत बड़ा स्कोप इस पूरे इलाके के अंदर है। तो हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से इस प्रकार के सेमिनार, मीटिंग्स समय समय पर आयोजित होती रहें और उनका क्या सार निकलता है उससे हमारे विभाग को हमें जरूर अवगत कराएं, जिससे कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं वो इसके अंदर हम करें। मैं देख रहा हूं कि लगातार जो है हमारा यहाँ का जो युवा है वो काम के लिए पलायन करता है, उसको बाहर जाना पड़ता है। आज राजस्थान का मजदूर पूरे देश के अंदर मजदूरी कर रहा है। अभी जैसे ही कोरोना काल आया, आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से भगदड़ मची और मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचा है। हमारे यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम स्किल की योजनाएं, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की खूब योजनाएं चल रही है जिससे हम उनको अच्छी स्किल उपलब्ध करा सकते हैं, उनको और मजबूत बना सकते हैं। लेकिन सही मायने में उनका पूरा प्रचार प्रसार या अभी लोगों की जागरूकता की कमी होने की वजह से बहुत से संस्थानों तक ही ये चल के और वहीं पे रुक जाती है। मैं इसमें कहना चाहूंगा इसका आप पूरा प्रचार प्रसार करें और मेरे लायक जो भी कोई सेवा हो, जो भी कोई आदेश हो, आप मुझे अवगत कराएं। मैं आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। समय की कमी है इसलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा जैसा आपका नाम है, अगली बार जब भी मैं उदयपुर के अंदर आऊंगा तो विश्वविद्यालय के अंदर मैं जरूर विजिट करूंगा। चाहे 5 मिनट के लिए ही आऊं, मैं आप लोगों से मिलके जरूर जाऊंगा। और आप लोगों ने आज मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खासतौर से राजश्री चौधरी जी को, जो कि लगातार पिछले 1 सप्ताह से संपर्क बनाए हुए हैं और उनका अनुरोध था कि मैं जरूर जुड़ूं, तो आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ। पुनः आप सब लोगों को आज के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for taking time in your busy schedule to join this relevant dialogue and enlightening us. Thank you very much. संस्कृति, सभ्यता, वन संपदा से परिपूर्ण अतुल्य भारत के वीर शिरोमणि राजस्थान की पावन भूधरा पर उदयपुर जनजाति बाहुल्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न विश्व प्रसिद्ध आकर्षण है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध, नवाचारों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए प्रोफेसर हनुमान प्रसाद, निदेशक प्रबंधन अध्ययन संकाय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से अनुरोध करते हैं। प्रोफेसर हनुमान प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर आयोजित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय श्रीमान टीकाराम जूली साहेब, सुखाड़िया विश्वविद्यालय के ओजस्वी कुलपति श्रीमान अमेरिका सिंह साहेब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रही जस्टिस मैडम मलिनी त्रिवेदी मैडम, जगदीश श्रीमाली जी, श्रीमान यूएस तोमर साहेब, अधिष्ठाता वाणिज्य प्रोफेसर पीके सिंह साहेब, अधिष्ठाता विधि डॉक्टर राजश्री चौधरी मैडम, इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़ रहे अधिष्ठाता गण, बॉम मेंबर्स, शिक्षा संकाय के श्रीमान सीआर सुथार साहेब, डॉक्टर अल्पना सिंह जी एवं प्राध्यापकों, विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे विश्वविद्यालय का एवं उनकी गतिविधियों का ब्यौरा देने का दायित्व मिला है, जिसे मैं
समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। दक्षिणी राजस्थान में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1962 में एक अधिनियम के द्वारा उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कि उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की स्थापना एक राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई। विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर आदिवासी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले अरावली क्षेत्र के उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शहर पर्यटन स्थल होने के अतिरिक्त अपनी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों एवं सुंदर परिदृश्य के कारण भी अपनी विशेष पहचान रखता है। वर्तमान में विश्वविद्यालय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी के कुशल नेतृत्व एवं अनुभवों से लाभान्वित हो दिन प्रतिदिन अनेक तरह के नवाचारों को अंजाम दे रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कुल 8 संकाय और तकरीबन 32 विभाग हैं और कई और संकाय और विभाग अभी माननीय कुलपति महोदय के प्रोत्साहन से सृजित कर अनुमति हेतु प्रेषित किए जा चुके हैं, जिनमें मुख्य तौर पर इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर संकाय का सृजन आपका ही विजन था। इन विभिन्न विभागों में कार्यरत प्राध्यापक गणों के शोध पत्र विश्व स्तर की नामचीन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय इंटेलेक्चुअल कैपिटल के मामले में धनी है। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति के अनुरूप विभिन्न स्किल ओरिएंटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज की शुरुआत विश्वविद्यालय में गत दिनों की जा चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी इन कोर्सेज को अभी कर रहे हैं। गत 1 वर्ष में अनुसंधान कार्यशालाएं, सम्मेलन, वेबिनार्स का विश्वविद्यालय में बृहद स्तर पर आयोजन किया गया। यही नहीं, नई शिक्षा नीति पर एक ही दिन में 155 वेबिनार करने का कीर्तिमान भी विश्वविद्यालय ने कायम किया, जैसा कि माननीय कुलपति महोदय ने बताया। विश्वविद्यालय शिक्षण और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी के जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विभिन्न प्रकार के दिवसों को, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाकर सभी यह लोगों को यह संदेश देता है कि हम सभी के साथ हैं, चाहे वो आज का इंटरनेशनल लेबर डे हो या राजस्थान दिवस हो, यहां तक कि हमने विश्व प्रसन्नता दिवस को भी सेलिब्रेट किया था। यही नहीं, विश्वविद्यालय के विभिन्न स्टेक होल्डर से संवाद कायम करने की प्रथा भी हाल ही के दिनों में विश्वविद्यालय में कायम की गई, जिसमें रिटायर्ड पेंशनर से लेकर विद्यार्थियों के अभिभावकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, छात्र नेताओं, संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और यहां तक कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं अकादमिक कार्य करने वाले लोगों के साथ भी संवाद कायम किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उनकी भावनाओं एवं समस्याओं का समाधान नीति के रूप में किया जा सके। विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में भी कभी पीछे नहीं रहा। पूर्व में विश्वविद्यालय ने धार गांव गोद लिया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए और वर्तमान में कैलाशपुरी गांव को
गोद में लिया गया है। यहां लगभग हर माह 2 बार शिविर लगाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती है। प्रशिक्षण, जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियां की जाती है। हमारे कुलपति जी भी इसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियों से भरपूर सरोकार रखते हैं। इसीलिए जैसा कि उन्होंने बताया, उन्होंने अपने स्रोतों से 5000 साड़ियां बांटने का लक्ष्य रखा है और काफी कुछ बट चुकी हैं। एवं मुझे यह भी जानकारी मिली है कि उन्होंने स्वयं आशाधाम आश्रम में 300 लोगों के भोजन 3 माह में 3 बार प्रायोजित करा चुके हैं। कोविड महामारी के दौर में तकरीबन 1,90,000 के आसपास मास्क का वितरण विश्वविद्यालय ने किया है, लेकिन विश्वविद्यालय पर इसका कोई वित्तीय भार नहीं आया है। और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कोविड महामारी के समय भी माननीय कुलपति महोदय स्वयं डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में उपस्थित रहे हैं। इस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है जिसने स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के शुल्क में 15% छूट देते हुए विद्यार्थियों को राहत दी है। विश्वविद्यालय ने पिछड़े, कमजोर और गरीब लोगों के कोविड में स्थिति को समझते हुए तकरीबन 150 विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी का शुल्क इस सत्र में माफ करने का निर्णय लिया। विश्वविद्यालय द्वारा 2 टीकाकरण शिविर भी आयोजित कराए गए जिसमें लगभग 300 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रेषित आनंदम को पाठ्यक्रम में सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने लागू किया और इसने न सिर्फ लागू किया वरन उसे विद्यार्थियों ने अडॉप्ट करते हुए बहुत सारी गतिविधियां भी आयोजित की। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का कि एक्टिवनेस का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गत 9 माह में 17 बार सीओडी का आयोजन किया गया और अभी हाल ही में आयोजित सीओडी में 1,11,00,000 तुरंत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता देने की का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की भी एक मीटिंग आयोजित की गई और उनसे भी प्रशासन को जो बन पड़े वो सहयोग देने की सहमति ली गई। महिला और बाल विकास क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। विश्वविद्यालय में स्थापित यूजीसी महिला अध्ययन रेडीमेड गारमेंट्स केंद्र ने महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक समानता एवं बाल विकास के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है। इस केंद्र पर भी महिलाओं को जीविकोपार्जन एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। गत कुछ दिनों पूर्व इसी केंद्र द्वारा प्रबंध अध्ययन संकाय के साथ मिलकर ऑनलाइन मास्क बनाने पर महिलाओं एवं जन सामान्य को प्रशिक्षण दिया गया। विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शहर की तरफ विश्वविद्यालय का एक मेन गेट, मुख्य द्वार बन रहा है जो 25 लाख की लागत का भव्य द्वार होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये 25 लाख का भार भी विश्वविद्यालय पे नहीं है और इसे कुलपति महोदय ने CSR के गतिविधि के तहत प्रायोजित करवाया है। इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान भवन में क्लासरूम्स, प्रबंध अध्ययन संकाय में सेमिनार हॉल एवं आधुनिक प्रसाधन सुविधाएं, शिक्षा संकाय भवन, विधि एक्सटेंशन भवन इत्यादि भी निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त एक इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर बिल्डिंग का भविष्य में निर्माण करने का शीघ्र प्लान है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को शासकीय या परीक्षा के उद्देश्य से जयपुर आना जाना रहता है एवं
उन्हें रहने की समस्या का आभास करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने एक 50 कमरों का गेस्ट हाउस जयपुर में शीघ्र बनवाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवा दी है। विश्वविद्यालय इस बात पर गर्व कर सकता है कि वह अपने अधिकांश कार्यों जैसे शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान, प्रशासन आदि के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रमुखता से कर रहा है। सभी संकटक महाविद्यालयों में आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कंप्यूटर लैब स्थापित है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट दैनिक आधार पर अपडेट की जाती है। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से हो, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त रोबोट भी शीघ्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध होने वाला है। विद्यार्थियों के रेडी रेफरेंस के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे तकरीबन 4000 ई कंटेंट्स जो कि पाठ्यक्रम से संबंधित हैं को भी अपलोड किया जा चुका है। इस कोविड काल में यह विश्वविद्यालय ऑनलाइन टीचिंग की पहल करने में अग्रणी था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में एक केंद्रीय पुस्तकालय है जिसमें लगभग 2,50,000 से अधिक पुस्तकें हैं। यहां भी एक ई लाइब्रेरी स्थापित है जिसमें विभिन्न ऑनलाइन डेटाबेस उपलब्ध हैं जिसका शोधार्थी भरपूर उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी महाविद्यालयों में भी लाइब्रेरी की सुविधा विद्यमान है। खेल और योगा के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय पीछे नहीं है। विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड के पास विभिन्न प्रकार के खेल उपकरण एवं क्रिकेट का मैदान, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, बास्केटबॉल कोर्ट इत्यादि हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर ने गत वर्ष फरवरी में फतेह सागर झील उदयपुर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कैनोइंग एवं कयाकिंग की मेजबानी भी की थी। के अतिरिक्त यहाँ के विद्यार्थी सदैव बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मेडल्स लाकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते हैं। इसी का योग केंद्र न सिर्फ पाठ्यक्रमों से विद्यार्थियों को योग शिक्षा देता है वरन सोशल मीडिया पर लाइव कार्यक्रमों के द्वारा जन सामान्य में योग स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैलाता है। अतिथिगण विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की एक लंबी लिस्ट है। विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को शब्दों में बांटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। खास तौर पर गत 9 माह से विश्वविद्यालय ने जो रफ्तार पकड़ी है उससे लगता है शीघ्र ही यह विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश एवं विश्व में अपनी पहचान स्थापित करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। आपने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा शैक्षणिक, सह-शैक्षिक गतिविधियों, सामाजिक उत्तरदायित्व के नवाचारों का सुदृढ़ स्वरूप से अवगत कराया। धन्यवाद सर। A skilled worker, regardless of the job description, remains a treasure. To discuss the challenges of these unprecedented times and measures that can be employed to counter loss of work opportunities, I now invite Professor P.K. Singh sir for his discourse. Professor P.K. Singh sir. धन्यवाद मैडम। आज की इस परिचर्चा जो वेबिनार के माध्यम से हो रही है उसके मुख्य अतिथि श्री टीकाराम जूली जी, श्रम मंत्री राजस्थान सरकार, माननीय प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मिस श्रीमती मालिनी त्रिवेदी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर, श्री जगदीश राज जी, शिमाली जी गेस्ट ऑफ ऑनर, श्री यूएस तोमर साहब फॉर्मर रजिस्ट्रार अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी गेस्ट ऑफ ऑनर, डॉक्टर प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी, डॉक्टर राजश्री मैडम, अल्पना सिंह जी,
my fellow colleagues and dear students. सबसे पहले मैं श्रम दिवस की सभी को बधाई देता हूं और सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं और अपनी बात 2 लाइनों से शुरू करता हूं कि अगर इस जहां में मजदूर का ना नामो निशान होता, फिर ना होता हवा महल और ना ही ताजमहल होता। वस्तुतः जितनी भी इमारतें, सड़कें, रेल लाइनें, बांध, मकान, महल जो हम दुनिया में देखते हैं वो मजदूर के पसीने की बूंदों के माध्यम से ही हमें साकार नजर आते हैं। अगर मजदूरों ने श्रम नहीं किया होता तो न ये बिल्डिंगें होती, न ये भौतिक सुविधाएं होती। वास्तव में हमारे प्राचीन शास्त्रों में श्रम को तो महत्व बहुत दिया गया है, श्रम की महत्ता के बारे में बहुत बातें की गई हैं, लेकिन व्यवहारिक जगत में मुझे एक हिचक कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे यहाँ वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में श्रम को नकारा गया है। श्रम को उतनी डिग्निफाइड तरीके से नहीं देखा गया जितना कि अन्य राष्ट्रों में भी देखा जाता है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो एक वर्ण व्यवस्था प्रचलित रही एक लंबे समय तक, उससे श्रम की गरिमा कम होती चली गई और आज भी अनेक बार हमें बदुआ मजदूरों के किस्से 70 साल बाद भी सुनने को मिलते हैं। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि श्रम की क्या स्थिति है। वास्तव में इस श्रम दिवस की जो शुरुआत थी वो 1 मई 1886 को अमेरिका में हुई, जहां मजदूरों ने विद्रोह कर दिया अपनी मांग के लिए, क्योंकि वो 15-15 घंटे काम करते थे। उसके बाद से वो काम के घंटे 8-8 घंटों में परिवर्तित कर दिए गए और भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 से आरंभ हुई। वस्तुतः लगभग दुनिया के 80 देशों में आज के दिन छुट्टी होती है, इसको एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत, जैसा कि माननीय कुलपति जी ने कहा कि 1/3 यानी लगभग 46.5 करोड़ श्रमिक भारत में अभी माने गए हैं। ये भी लगभग 10 साल पुराना आंकड़ा ये मैं बता दूं, जिसमें 2.8 करोड़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, 43.7 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से भी लगभग 25 करोड़ एग्रीकल्चर में हैं, 4.5 करोड़ निर्माण में हैं और बाकी अन्य क्षेत्र में हैं। और इसमें विचित्र स्थिति यह है कि 94% करीब जो श्रमिक है, मजदूर है, मैं इसको मजदूर कहना ज्यादा पसंद करूंगा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है और जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीने से भी कम है। तो वास्तव में मजदूर की स्थिति इस तरीके की है। और मजदूरों की मुख्य रूप से 5-6 समस्याएं मेरे को दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या तो हाई लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब है, जॉब की कोई निश्चितता नहीं है। दूसरा, मिनिमम वेजेस का कोई फिक्सेशन नहीं है, मिनिमम वेजेस हैं भी तो भी नहीं मिलती हैं, उसके प्राप्त करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। काम के कोई घंटे निश्चित नहीं है कि कितने घंटे वो काम करेगा। वर्क हैजार्ड्स बहुत ज्यादा हैं और वीमन और चाइल्ड लेबर की स्थिति भी अभी भी है और वीमन और मेल और फीमेल की जो डिफरेंसेस हैं वो लेबर सेक्टर में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन सबको देखते हुए मेरा ये मानना है कि एक्ट तो बहुत बने भारत में, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल रूप में वो केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर तक ही सीमित रह गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा नहीं मिल पाया। मेरा ये मानना है कि इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों को शिक्षा और स्किल्ड ट्रेनिंग नहीं दे पाए। अभी भी देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों का बड़ा भाग अशिक्षित है। मोटे मोटे तौर पर अभी भी 30% जनसंख्या भारत की जो है इलिटरेट, अशिक्षित कैटेगरी में आती है और जो लगभग 40 करोड़ के करीब होती है और इसका अधिकांश भाग मजदूरों की श्रेणी में आता है। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े श्रमिक वर्ग को
कब शिक्षा मिलेगी, कब उनके पास शिक्षा पहुंचेगी, कब उनके पास स्किल पहुंचेगा, ये एक बड़ा चैलेंज भारत के सामने है, विश्वविद्यालयों के सामने है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोविड और आने वाले समय में विश्वविद्यालय और खासकर हमारा विश्वविद्यालय इस तरीके के निश्चित रूप से प्रयास करेगा कि इन मजदूरों में शिक्षा का अलग और स्किल ट्रेनिंग का अलग किस तरीके से जगह पाए, ताकि ये अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकें। और सरकार की तरफ से मेरा ये मानना है कि सोशल सिक्योरिटी, ये वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके पास किसी भी तरीके की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ना हेल्थ सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ना स्टेबिलिटी यानी प्लेस सिक्योरिटी भी नहीं है कि ये आज यहाँ रहेंगे या कल वहां रहेंगे। तो सोशल सिक्योरिटी का जो फ्रेमवर्क है वो इंडियन कंटेक्स्ट में हमारे मजदूर वर्ग के लिए बड़ा ही कमजोर है। और मैं अपनी बात को ज्यादा ना विस्तार देते हुए, मेरे को कभी कभी दुष्यंत की जो मशहूर कविता है उसकी लाइनें याद आती हैं, क्योंकि अभी तक इस वर्ग के प्रति, मजदूर वर्ग के प्रति जो दर्द की आग हम सबके सीने में जलनी चाहिए वो नहीं जली। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही वो कहीं भी आग, लेकिन ये दर्द की आग जरूर जलनी चाहिए। जिस दिन ये दर्द की आग हम सबके सीने में जलेगी, मेरा ये निश्चित मामला है कि मानना है कि मजदूरों की दशा और उनकी दिशा में जरूर परिवर्तन आएगा, और इसमें विश्वविद्यालय, खासकर सुखाड़िया विश्वविद्यालय अपना महती योगदान देगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। Dignity of labor, emphasis on education and skill development for laborers. Thank you, sir, for taking up these very critical aspects on this significant day and sharing your keen vision with us. Thank you. अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा, विश्व युवा श्रमिक सम्मेलन जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय सचिव, केंद्रीय इंटक नई दिल्ली, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान इंटक जयपुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन, मुख्य संयोजक मजदूर किसान कर्मचारी समन्वय समिति, आम आदमी के सिपाही श्री जगदीश राज श्रीमाली जी से उद्बोधन का विनय। श्री जगदीश राज श्रीमाली जी। विश्व श्रम दिवस के इस उपलक्ष्य में आयोजित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा इस वेबिनार में हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के श्रम मंत्री परम आदरणीय टीकाराम जी जूली साहब, इस कार्यक्रम के हमारे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 9 महीनों में ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले बहुत ही आदरणीय सम्मानीय कुलपति महोदय अमेरिका सिंह जी, हमारे बीच में सम्मानित अतिथि श्रीमती मालिनी त्रिवेदी जी, हमारे स्पेशल गेस्ट यूएस तोमर साहब, पीके सिंह जी जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे विचार हमारे सामने रखे, हनुमान प्रसाद जी जिन्होंने भी विश्वविद्यालय का पूरा लेखा जोखा हम सभी को अवगत कराया, मैडम राजश्री चौधरी जी, अल्पना सिंह जी, निशा जी और तमाम आज इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी को मेरी तरफ से विश्व श्रम दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये हम मजदूरों के लिए महापर्व है। ये मेहनत कश कौम के लिए पूरा विश्व में एक मिसाल है कि आज का दिन हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हुए संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में हम मजदूरों की हक और हकूक की लड़ाई को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन करते हुए इस विश्व में जो परिश्रम और पसीना बहाने वाली कौम को हम कैसे मजबूत करें। 1886 में जब वो दौर था कि बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जाता था सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, और उस समय पहली आवाज हुकूमत के खिलाफ उठी कि हम भी इंसान हैं,
हमें भी इंसान की तरह जीने दो, हमें भी कार्य के घंटे काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए दो, और बाकी हमको भी परिवार और शरीर को आराम करने के लिए दो। और इसी आवाज को दबाने के लिए कुचलने की कोशिश की, कुर्बानी हुई, शहादत हुई, और अंतोगत्वा 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमें वो सफलता मिली। 8 घंटे की ड्यूटी का अधिकार अमेरिका के शिकागो शहर से हमें प्राप्त हुआ, और वहां से ये जलती हुई मशाल पूरी दुनिया में बढ़ती गई। मजदूरों में जागृति, उन्नति और तरक्की और एकता के साथ ये नारा बुलंद होता गया कि मजदूर एकता जिंदाबाद। तो आज मैं कुलपति साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने वास्तव में जो कहते हैं कि 9 महीने का कार्यकाल, एक माँ अपने गर्भ में 9 महीने को बच्चे को उसका गर्भाधारण कराकर विकसित करती है, तो ये 9 महीने का कार्यकाल में आपने जो यूनिवर्सिटी को इस तरीके से उसके पल्वित करने की जो परिसंरचना की है, या आने वाले समय में माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में सुखाड़िया विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं विश्व का बेहतरीन विश्वविद्यालय साबित होगा, ऐसी मुझे आशा है। श्रम मंत्री जी टीकाराम जी जूली साहब को भी मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि पिछले समय कोरोना काल में मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, मजदूरों को रोजगार से वंचित किया जा रहा था, उस समय में उन्होंने हमारे जो मैं बीओसीडब्ल्यू बोर्ड का मेंबर हूं, हमसे टेलीफोनिक संवाद स्थापित किया, और सबसे पहले मजदूरों को, प्रत्येक मजदूर निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए को 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी कराई मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे। उसके बाद 1,000 रुपए की और किस्त जारी कराई, यानी कि प्रत्येक मजदूर को 3,500 रुपए हमने हर एक के अकाउंट में डाला, और लगभग 400 करोड़ रुपया बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के माध्यम से निर्माण के श्रमिकों को दिया। मंत्री जी ने एक साहसिक कदम और पिछली मीटिंग में उठाया था कि मजदूर का बच्चा आईएएस और आईपीएस आरएस के लिए अगर वो तैयारी करता है तो हम उसको आर्थिक सहायता देंगे उसकी कोचिंग के लिए, और वो एक शुरुआत उन्होंने पहली बार की। इसके साथ ही एक शुरुआत उन्होंने ये कही कि जो भी मजदूर का बेटा कोई मेडल जीत के आता है या वो रैंक में पढ़ाई में अच्छे नंबर लाता है तो हम उसको नगद इनाम दिया जाएगा। तो मंत्री जी के इन विचारों से लगता है कि मंत्री जी के दिल में मजदूर वर्ग के लिए काफी जगह है। मैं इस मौके पे यही कहना चाहता हूं कि आज भी हमको मजदूरों के हक को दिलाने के लिए, उसके कार्यों के घंटों का निर्धारण करने के लिए, न्यूनतम मजदूरी, उसको सोशल सिक्योरिटी पीएफ और ईएसआई से जुड़वाने के लिए अभी भी हमको काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ते तब तक हमें सफलता हासिल नहीं होती है। तो ये आज मैं यही कहना चाहता हूं, आपने जो हमें बुलाकर जो मौका दिया है, और पहली बार मजदूरों के लिए मजदूर दिवस को आपने इस विश्वविद्यालय ने इतना महत्व दिया है कि मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जो आपने इस कोरोना काल में, चाहे मास्क वितरित का काम हो, चाहे आपने 1 करोड़ 11 लाख रुपया सहायता की घोषणा की हो, ये भावना से ये महसूस होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति महोदय के दिल में मजदूर और मेहनत कश वर्ग के लिए बहुत बड़ी जगह है। ये पहली बार ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से कुलपति महोदय ने जो समाज का सबसे नीचे का तबका है मजदूर, उसको ऊपर उठाने के लिए जो भावना है, तो मैं आपके लिए, यूनिवर्सिटी के लिए साधुवाद देते हुए ये कहूंगा कि आपने पिछले समय उदयपुर सीमेंट की विजिट की थी, जो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 1970 में इस प्लांट को लाए थे, बजाज समूह से लगवाया था, और 12 साल ये उद्योग बंद रहा। जहां मैं मजदूर में भर्ती होकर मजदूर नेता तक बना हूं, उसी फैक्ट्री की में आप पधारे थे, और आपने कहा था कि इस उद्योग को हम केस स्टडी में शामिल कराएंगे ताकि ये बच्चे शिक्षा जगत से जुड़कर ये सोचे कि 12 साल जो फैक्ट्री बंद हो गई, 12 साल में टेक्नोलॉजी बदल गई,
और वो वापस ये उद्योग कैसे चला और उन्हीं पुराने मजदूरों को नौकरी पे रखकर और वापस उस उद्योग की डबल कैपेसिटी का प्लांट, पहले 800 करोड़ लगा और अभी 1400 करोड़ और लगकर डबल बनने जा रहा है। तो मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूँ वीसी महोदय को कि आप इसको केस स्टडी में उदयपुर सीमेंट को अवश्य दिलवाए। जो लोग बाहर से उदयपुर के टूरिज्म में, पर्यटन में और इधर देखने आते हैं, वो लोग उदयपुर सीमेंट को भी देखे कि मेवाड़ की धरती पे एक कारखाना बंद होकर वापस सुचारू रूप से चल के एक मॉडल इंडस्ट्री के रूप में धारण किया है। आज हमारा मिनरल बेस इलाका है, श्रमिक बाहुल इलाका है। डीसी साहब ने कहा कि 40 से 45 करोड़ इस देश में अनऑर्गेनाइज के लेबर है और राजस्थान में भी यही स्थिति है कि हमारे ज्यादातर पहाड़ी इलाका जमीन कम है और इसलिए हम लोग मजदूरी पे निर्भर है। और मजदूरी के लिए जब बारिश के समय में हम फसल कमा लेते हैं और बस फसल काटने के बाद हम गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह चले जाते हैं। तो ये एक मिनरल बेस भी हमारी इंडस्ट्री जहाँ सभी तरीके से, या सोप स्टोन से लगा के डोलामाइट हो, रॉक फॉस्फेट हो, लाइव स्टोन हो, जिंक हो, सिल्वर हो, केडियम हो, और अभी तो ईश्वर की दया से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल भी निकला है। तो ये खनिज बाहुल प्रदेश और मेवाड़ क्षेत्र है। ऐसे में हमारे को जो माइनिंग वर्कर्स है, जो खदान में काम करने वाले श्रमिक है, उनके लिए मैं आपके मंच के माध्यम से राज्यपाल महोदय साहब से, मुख्यमंत्री जी से और टीकाराम जी जूली साहब से भी ये निवेदन करूंगा कि खनिज कल्याण बोर्ड के लिए जो खनिज श्रमिक है, जो मिनरल वर्कर्स है, उनके कल्याण के लिए भी एक बोर्ड की नितांत आवश्यकता है, ताकि माइनिंग में इतने एक्सीडेंट होते हैं, उनको पुनर्वास, उनको सोशल सिक्योरिटी, उनके परिवारों का भरण पोषण, और एक सिलिकोसिस बीमारी जो बहुत ही ज्यादा इस खदान में काम करने वाले मजदूरों में होती है, जिससे वो जानलेवा बीमारी है, उसके परिवार पूरे उससे पीड़ित हो जाते हैं। इनसे बचाने के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार के अशोक जी गहलोत ने सबसे पहले, पूरा राजस्थान का पहला स्टेट है जिसके लिए सिलिकोसिस एक नीति तैयार की, उसके इलाज के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि एक खनिज में काम करने वाले मिनरल वर्कर्स यानी माइनिंग वर्कर्स के कल्याण के लिए अलग से बोर्ड होना चाहिए, ताकि उसमें श्रमिकों का कल्याण हो सके। एक डीएमएफटी फंड जो शेयर से कलेक्ट होता है, वो डीएमटी फंड, उसका आपने देखा होगा कि अभी पिछले समय में, पहले उसका जिला कलेक्टर चेयरमैन होते थे, फिर इंचार्ज मिनिस्टर को बनाया, अभी बीच में वापस सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बदल कर उन्होंने कलेक्टर को पावर दिया। मुझे बड़े दुख और विडंबना के साथ कह रहा हूं कि जो मिनरल में, जो माइंसों में काम करने वाले मजदूर, जो उस कड़ी मेहनत करके पसीना बहाकर और वो पैसा कमाकर राजस्थान के या भारत सरकार के खजाने में भेजता है, लेकिन उस डीएमटी के फंड में 1 रुपया भी उस मजदूर के खर्च करने का प्रावधान नहीं है। वो खर्च कहाँ हो रहा है? सड़कें बनाने में, स्कूल बनाने में, पंचायत भवन बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में। लेकिन जो पसीना बहाने वाला मजदूर है, जो कमा के तिजोरी में पैसा भेज रहा है, उसके परिवार के कल्याण के लिए और उस डीएमटी फंड में, ट्रस्ट में मजदूरों के प्रतिनिधि को रखने की बात हमने कई मंच से उठाई है, ताकि हम उस पैसे पर नजर रखें और उस पैसे की भागीदारी में हमारा हिस्सा मजदूर तक भी पहुंचना चाहिए। आज आपने ये मंच दिया मुझे, जिसके माध्यम से मैंने सरकार के समक्ष ये बात रखने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं इस कोविड-19 में हमारे संगठन ने भी, हमने मास्क वितरित किए, हमने सैनिटाइजर वितरित किए, हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष में नगद राशि भेंट की, हमने मेडिकल कैंप भी लगवाए और हमने एक प्रयास किया। मैं इससे यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे जो सक्षम लोग हैं, औद्योगिक घराने हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, ऐसे समय में वो अपने परोपकार रूपी पुण्य का कार्य करने के लिए सबसे देश के ज्यादा परिश्रम, मेहनत करके निर्माण और उत्पादन करने वाली मजदूर कौम को मदद के लिए आगे आए। यही हमारे लिए इस मजदूर दिवस पे संकल्प होगा। और मैं इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में,
किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में, और भाग्य को खोजते हैं पंडित पादरी ग्रंथी और फकीरों में, और खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत, लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की हिम्मत है हम कर्म वीरों में, श्रम वीरों में, हम मजदूरों में। जय हिंद, जय भारत। इस विश्व श्रम दिवस पे आपने मुझे बुलाकर जो अवसर दिया उसके लिए पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद। आपने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऐतिहासिक साक्ष्य एवं तत्कालीन श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का मार्गदर्शन करवाया। धन्यवाद सर। एक सेकंड, In the words of एक सेकंड। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार, जैसा कि माननीय सीमाली जी ने कहा कि उदयपुर सीमेंट पे कोई केस स्टडी के लिए, तो प्रबंध अध्ययन संकाय इस केस स्टडी को टेकअप करेगा। बहुत ही शीघ्र आपसे मैं संपर्क करके इस संदर्भ में जानकारी लेके और इस केस स्टडी को हम बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रबंध अध्ययन संकाय आपसे संपर्क करके इस केस स्टडी पे काम करेगा सर। Thank you, sir. In the words of Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations, business, labor, and civil society organizations have skills and resources that are vital in helping to build a more robust global community. To take this discussion forward, I cordially invite our special guest, Shri U.S. Tomar, former Registrar, Abdul Kalam Technical University, to share his views. Shri U.S. Tomar, sir. आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रम मंत्री राजस्थान सरकार श्री टीकाराम जूली जी, गेस्ट ऑफ ऑनर जस्टिस मिसेज मालिनी त्रिवेदी जी, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अमरीक सिंह जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल राष्ट्रीय इंटक के सीनियर सेक्रेटरी श्री जगदीश राज श्रीमाली जी और इस कार्यक्रम के आयोजक शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों, शिक्षक तथा सभी सम्मानित कर्मचारीगण, विद्यार्थीगण तथा इस कार्यक्रम में सम्मिलित प्रेस मीडिया से संबंधित सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। इस कार्यक्रम में अभी जो वक्ताओं के द्वारा काफी अपनी तरफ से बात रखी गई है, उसमें निश्चित रूप से जो माननीय मंत्री जी के द्वारा और विश्वविद्यालय के कुलपति जी के द्वारा जो बातें प्रदेश की तरफ से, जो प्रदेश सरकार की ओर से या विश्वविद्यालय की ओर से जो की गई, उनमें जो कंसर्न एक तरीके से जो उसमें एक बात प्रदर्शित झलकती है, वो एक बहुत बधाई का पात्र है। ये प्रदेश कहें या विश्वविद्यालय के श्रमिकों के प्रति भी जो आज की बाकी बहुत सारी चीजें तो उसमें उनके जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसमें सम्मिलित हैं, वो अन्य किसी समय पर जो चीजें उनकी भावनाएं हैं उन पर बात की जा सकेगी। आज का जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में जो आयोजित विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजन किया गया है, वह निश्चय ही एक बहुत बधाई और उनकी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी जो बातें कही हैं उसमें निश्चित रूप से उनका जो कंसर्न है वो श्रम लेबर के प्रति उतना ही मेरे ख्याल से उनका भाव में है जो उनके मुख्य उनकी जो एकेडमिक्स है या अन्य जो उनके दायित्व उनको निहित हैं। इस अवसर पर श्री माली जी के द्वारा जो बातें कही गई उसमें बड़ा बहुत सुनकर के अच्छा लगता है कि जो उनका कार्यस्थल रहा है, जिस कार्यस्थल से उन्होंने कोई एक प्लेटफॉर्म लेकर के और आज वो जिस भी मुकाम पर है उसको अगर वो उससे जोड़ते हैं और जोड़ करके जो बात उन्होंने उसके प्रति जो उन्होंने एक दर्द महसूस करते हुए विश्वविद्यालय से भी अनुरोध किया है कि उसको केस स्टडी के रूप में
उस कारखाने को एक रूप दें और उसको आगे बढ़ाने और चलाने के लिए कुछ अपनी तरफ से जो सहयोग विश्वविद्यालय से संभव है वो करेंगे। तो निश्चय ही यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उनमें बहुत ही अच्छा लगता है सुनकर कि लोगों की भावनाएं, कितनी अच्छी भावनाओं से लोगों ने आज के इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर अपनी बातें कही हैं और उनका जो मन है, उनकी जो नियत है, वो उनके प्रति उनका वो झलकती है कि वो बहुत अच्छे भाव से आज ये जो आयोजन है उसमें भाव भी निहित है। अब मैं अगर इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो थीम है, जो कोविड कोरोना की जो महामारी है, उस समय पर जो श्रमिकों का जो कार्यक्रम, श्रमिकों को जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं तथा उस चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या उनकी तरफ जो हम लोगों की ओर से या सरकार की, विशेष रूप से सरकार और समाज की ओर से जो चीजें संभव हैं और उनके अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए की जाए, उन पर थोड़ा सा जो प्रकाश डालूं जितना समय है उस हिसाब से। जहां तक मुझे जानकारी है, करीब जो अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स जो अभी वापस आए थे लास्ट ईयर, कोविड की जो महामारी का प्रारंभ हुआ उसमें जो वापस आए, जो सरकारी आंकड़े उनके हिसाब से करीब 100 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स का उनका एक डाटा सरकार के द्वारा दिया गया था। तो 10 करोड़ वर्कर इस तरह से फॉर्मल रूप से लोगों के मतलब इस प्रोडक्शन में कंट्री में या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उन सब में मिला करके 10 करोड़ वर्कर का डाटा गवर्नमेंट ने एक दिया था। जो अन्य जो एक ग्लोबल एजेंसी के द्वारा रिपोर्ट है, मैंने एक दफा कहीं मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले, उसमें कहा गया था कि जो हमारी जो लेबर है ये करीब 10.5% कास्ट ऑफ दी है, लेबर कॉस्ट, जो इस समय जो भी चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शंस हैं उसमें 10.5-11% की कॉस्ट लेबर कॉस्ट के रूप में होती है। और हमारी जो हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, हमारे भारतवर्ष की जो जीडीपी है, उसका लगभग 10% जो जीडीपी के जो भागीदारी है वो हमारे लेबर के कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। तो जो सेक्टर आप अगर कंट्रीब्यूशन आप उसका योगदान अगर देखें तो वो योगदान मतलब 10% जीडीपी में योगदान एक कोई बहुत छोटा मोटा योगदान नहीं है। लेबर श्रमिकों के द्वारा एक बहुत बड़ा योगदान हमारे देश की जीडीपी में किया जाता है। दूसरी बात में अगर ये कहूँ कि जैसा कहा जा रहा है कि ये इसमें पिछली बार उसमें क्या कहा गया, संसद में भी पार्लियामेंट में भी वित्त मंत्री जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स में कितने लोग जो फॉर्मल इनफॉर्मल रूप से जो उनकी जो सार्वजनिक वाहनों या सार्वजनिक साधनों के अलावा जो लोग लोड करके आए हैं, उनके डाटा उन लोगों के पास, सरकार के पास नहीं है। तो मेरा अपना एक निवेदन है इस अवसर पर कि सरकार एक सिस्टम ऐसा भी डेवलप होना, सरकार की तरफ से एक सिस्टम ये ऐसा डेवलप होना चाहिए कि जिससे कि जितना भी वर्कर है, टोटल वर्कर जो अभी इस सेमिनार में जो इस कार्यक्रम में अभी बताया गया कि साहब वो 45 करोड़ है और इसमें कितना जो रूरल एरिया का है और कितना जो हमारा अर्बन एरिया का है, ये भी डाटा अभी कोई सर्टिफाइड डाटा मैं समझता हूँ शायद नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी टोटल वर्कर जो हमारा जो इन्वॉल्व है वर्कर के रूप में, शायद गवर्नमेंट के पास अभी तक पूर्ण रूप से और डाटा सर्टिफाइड रूप से नहीं है। और दूसरा एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे पास जो डाटा है, वो डाटा मान लीजिए जो फॉर्मल वर्कर के रूप में है उनके डाटा हमारे पास है, पर जो इनफॉर्मल वर्कर है जो घरों में काम करते हैं, जो लोगों के घरों में महिलाएं जो मेड जो काम करती हैं, मैं समझता हूँ शायद उनका डाटा पूरी तरह से किसी भी एजेंसी के माध्यम से गवर्नमेंट के पास मेरी जानकारी में नहीं है। तो चाहे वो एक एनजीओ इस प्रकार के इस समय डेवलप किए जाए
या कोई और एजेंसी इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा खड़ी की जाए कि जो फॉर्मल के साथ साथ जो इनफॉर्मल जो लेबर हमारा जो वर्क फोर्स है उस वर्क फोर्स का डाटा भी गवर्नमेंट के पास हो। पिछली पार्लियामेंट में वित्त मंत्री जी के द्वारा ये भी बात रखी गई थी कि इस कोविड के समय में, इस महामारी के समय में जो माइग्रेंट वर्कर्स हमारे जो थे उनमें से कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने लोग जॉबलेस हो गए हैं, ये जानकारी सरकार के पास नहीं है। तो ये कोई वो डेवलप की जानी चाहिए। जो डाटा जो है वो सरकार के पास सर माइक म्यूट हो गया आपका। आ गए, आवाज आई? यस सर, यस सर। ये जो कुछ एजेंसी जो है वो ऐसी एक डेवलप होनी चाहिए जिसमें कि ये चीजें भी उनके पास गवर्नमेंट को जानकारी इसकी उपलब्ध हो सके। दूसरा जो हमारा जो इस समय जो कोविड महामारी के समय जो चैलेंज है वो लेबर के जो पिछली बार प्लान कर गए थे वो वापस नहीं गए हैं, उनमें से 60, 70, 80% शायद वापस हो गए हैं। तो मनरेगा एक ऐसी गवर्नमेंट की एक एजेंसी एक एक्ट इस तरीके से 2005 में ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था और उसमें शायद एक मैंडेट, जो जहां तक मुझे जानकारी है वो मैंडेट है कि सब हर व्यक्ति को 100 वर्किंग डेज का काम का मौका अवसर प्रदान किया जाएगा। वो यद्यपि अभी तक कभी वो अचीव नहीं हो पाया है। जो डाटा जो पिछले उसमें जो देखे गए हैं उनमें है कि जो 2019-20 में 48.4 वर्किंग डेज जो है पर पर्सन उपलब्ध हो सके हैं। जो पिछली जो हमारी जो पैंडेमिक ईयर जो 2021 का गया है उसमें ये जो फिगर है ये 42.6 की रही है। तो अगर ये भी एक सिस्टम इसका इस तरीके से डेवलप किया जाए कि ये जो 100 डेज का जो एक मैंडेट रखा गया है वो 100 जो मैंडेट है वो उसको पूर्ण किया जाए और उसको अचीव किया जाए। इसके अंदर जो वो कहा एक जो पर पर्सन जो ये वो मिला है कि जो कितना इनको एक आदमी को पर मंथ क्या उपलब्धि इसमें मनरेगा में हुई है। आपके जो राजस्थान की फिगर है वो पैंडेमिक से पहले ये 507 रुपए पर पर्सन थी, जो इस पैंडेमिक में 1031 रुपए पर मंथ पर पर्सन हो सकी है। तो और जो हमारा उत्तर प्रदेश की जो फिगर है वो उत्तर प्रदेश की फिगर है ये 576 रुपए पहले इसकी जो वो थी जो अब 1004 उसकी वो पर मंथ 1004 रुपए पर पर्सन पर वर्कर को ये इस पैंडेमिक ईयर में कोविड के समय में जो उनको दिया जा सका है। भारत सरकार ने लास्ट ईयर जो इसके लिए जो प्रावधान रखा था वो प्रारंभ में 61,500 करोड़ रुपए का प्रावधान अपने यूनियन बजट में किया था और जिसको बाद में 40,000 करोड़ रुपए और उसमें ऐड करके 1,01,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। लेकिन वो शायद वो राशि का उपयोग पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया है। नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को उस पर भी कुछ फोकस करने की जरूरत है कि जो भी हम इस तरीके से अपने प्रोविजंस करते हैं, जो भी अपने जो एक्ट या कोई जो इस तरीके की जो प्रोविजंस किए जाते हैं उनका जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक सिस्टम होना जरूरी है जो ये चीज को देख सके कि साहब कितना हमारा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन की क्या पोजीशन है। एक 96 में हमारा जो इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो लेबर इन्वॉल्व है उस पर एक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित किया था और उसमें एक प्रावधान किया था कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है उसमें 8% सेस लेबर वेलफेयर के लिए रखा जाएगा। और वो एक्ट में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी लगभग 5.5 करोड़ जो फिगर है कि ग्लोबल एजेंसी की रिपोर्ट में वो 5.5 करोड़ वर्कर हमारी हिंदुस्तान की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है।
और उस 5.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में से लगभग 1.8 करोड़ वर्कर को ही ये जो सेस के द्वारा जो राशि कलेक्ट हुई है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन की फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी थी, और वो 5,000 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो डिस्ट्रीब्यूशन भी 1.87 करोड़ वर्कर्स के बीच संभव हो सका। जो 5.5 करोड़ का जो बाकी जो गैप है वो उनको जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो इसके रीजंस, एक तो गवर्नमेंट के पास उसके पूरा डाटा नहीं है कि उनकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो किस तरीके से किया जाए, सबके खाते, सबके आधार या सबकी जो एड्रेसेस या जो चीजें जो गवर्नमेंट के पास जो होना बनता है वो चीजें नहीं है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। तो इसके अलावा जो अभी आज की जो इस समय की रिक्वायरमेंट है, जो सेकेंड वेव जो इसकी पैंडेमिक की जो कोविड की जो इस समय है, उसमें जो मेरे हिसाब से जो एक मैं अपनी इस प्लेटफॉर्म पर जो आपने मुझे अवसर दिया है उसको मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी कुछ राज्यों में, जैसे मैं अभी बेंगलोर में हूं, तो कर्नाटक राज्य ने 15 दिन का लॉकडाउन किया है। कुछ राज्यों ने फ्राइडे से लेकर के फ्राइडे की शाम से लेकर के मंडे तक के लॉकडाउन रखे हैं। तो ये इसमें कोई पैनिक ना हो, ये एक व्यवस्था थोड़ी सरकार की तरफ से इसका प्रचार प्रसार सरकार की तरफ से हो, और अगर ये 15 दिन या 20 दिन या महीना से ज्यादा का लॉकडाउन की स्थिति सरकार ना समझती हो तो उनको ऐसी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा उनको इनको आश्वासन या उनकी जो देखरेख है वो उस रूप में हो कि वो इसमें प्लान करने की ना सोचें और वो जिस स्थान पर है वहीं पर अपना इसको स्टे करें। दूसरा, इसमें जो पिछली बार सरकार ने उसको किया भी है, जो एक राशन कार्ड जो उत्तर प्रदेश का है वो राजस्थान में भी उससे राशन ले सकता है। राजस्थान का राशन कार्ड होल्डर जो है वो महाराष्ट्र या कर्नाटक या केरला किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में उससे मिलने वाली सुविधाएं ले सकता है। तो इसके एग्जीक्यूशन पर थोड़ा इसको मॉनिटर होना जरूरी है, ताकि जो हमारी जो श्रमिक वर्ग है, जो श्रम शक्ति है, वो आश्वस्त रहे और उसको ये लगे कि उनका परिवार कम से कम किसी भुखमरी का शिकार होकर के इस तरह की दिक्कतें फेस नहीं करेगा। जो आदमी, ये आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि जो आदमी अपने प्रदेश को छोड़ करके अपने रोजगार के लिए, अपनी रोजी के लिए किसी अपने गृह प्रवेश को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर के अपने काम के लिए अगर प्लान गया है, वहां एंगेज हुआ है, तो वो तब तक वापस आने की नहीं सोचेगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा एहसास नहीं होगा कि मुझे इससे ये प्रकार की ये दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी, नहीं तो मैं अपने घर जाऊं, कम से कम मैं भुखमरी का शिकार तो नहीं होगा। तो जो एक भारत सरकार के द्वारा जो ये मनरेगा में, जैसे मैंने अभी बताया कि 100 दिन का उसमें उन्होंने कहा है, कभी 100 डेज मैंडेट रखा है, तो उसको करें। दूसरा, जो एक राइट टू फूड का जो एक्ट जो भारत सरकार के द्वारा किया गया था पहले, उस पर भी अमल उतना ही ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी मजदूर, कोई भी व्यक्ति, जिसमें हमारे मजदूर भी शामिल है, ये कोई भी आदमी भुखमरी के शिकार की स्थिति उत्पन्न ना हो और आदमी को कम से कम अपने भोजन, अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था की सुनिश्चितता उसको बने। इसके अलावा मैं जो अभी आपसे थोड़ा सा मैंने टच किया था, वो मेरे लिए मैं उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उससे कंसर्न महसूस करता हूँ, मुख्य रूप से कि जो इनफॉर्मल हमारा जो श्रमिक वर्ग है, आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के इस अवसर पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस भी तरीके से जो हम विश्वविद्यालय में कोई प्रपोजल बना के या सरकार को प्रपोजल भेज के, राजभवन को प्रपोजल भेज के एक प्रदेश स्तर पर एक इस तरह का प्रपोस्ट होना चाहिए कि जो इनफॉर्मल वर्कर है, जो लोगों के घरों में मेड के रूप में या उसमें काम करते हैं, उसमें विशेष रूप से महिलाएं होती हैं, ज्यादातर उसमें महिला वर्ग होता है, तो उसके लिए कोई ऐसी स्कीम या योजना या कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम उस तरह होना चाहिए जिसको कि मैं भी अपनी तरफ से एक प्रोग्राम किसी प्लेटफॉर्म पर किसी दिन चर्चा में या किसी उसमें भागीदारी में प्रदान कर सकता हूं।
तो वो इसका ऐसी व्यवस्था ये होनी चाहिए ताकि उनकी भी स्थिति को बिहार से मान लीजिए या बंगाल से या कहीं किसी मध्य प्रदेश से किसी राज्य से के राजस्थान से के ट्राइबल एरिया से रूरल एरिया से महिलाएं जो हैं वो कहीं किसी जगह जाकर के माइग्रेट करके बसती हैं और लोगों के घरों में काम करते हैं और इस तरह की जो ये हमारे बीच में पेंडेमिक और वो या ये जो स्थिति पिछले 1 साल से हुई है उसमें उनकी क्या स्थिति है। मैं समझता हूँ शायद सरकार के या किसी के पास उसका कोई बहुत ऑथराइज्ड डाटा मैंने नहीं पढ़ा अभी तक किसी अखबार में या किसी रिपोर्ट में। उसके लिए एक मतलब एनजीओ डेवलप किए जा सकते हैं या कुछ गवर्नमेंट एजेंसी एक इस तरीके से भी की जा सकती है जिसको कि ध्यान देने मतलब ये एक ध्यान देने योग्य विशेष रूप से एक आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं अन्य चूंकि ये अगर इस लेबर उस पर मैं आगे चर्चा में करूंगा तो काफी मैं आपका समय काफी लूंगा, लेकिन क्योंकि आज का समय थोड़ा जो दिया गया है उसके हिसाब से मैं और कभी चर्चा में अगर कोई लेबर के विषय में श्रमिक उस पर कोई कार्यक्रम आयोजित होगा तो अपनी तरफ से या बिना कार्यक्रम के अलावा नहीं भी होगा उसके अलावा भी एक लेख के रूप में मैं कुलपति जी को इसका अपनी जो मेरे जानकारी के हिसाब से जो है मैं वो कोशिश करूंगा कि भेजूं। इसमें इस जो विश्वविद्यालय की ओर से मैं जो देखता हूँ कुछ एक मैं थोड़ा सा जुड़ा हूँ राजस्थान की एक एजुकेशन की जो ब्यूरो है उससे उसमें जो चीजें आती हैं वो देखता हूँ कि विश्वविद्यालय में मैं ये थोड़ा कुलपति जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रजिस्ट्रार था यूनिवर्सिटी में और आप वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है बहुत ही एक्टिव प्रोफेसर के रूप में ही वाज वन ऑफ दी जो बहुत सिंसियर जो बड़े जो बहुत ही जिम्मेदारी के काम होते थे कभी क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से देखते हुए भी क्योंकि ही वाज ए वेरी सीनियर पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूशन तो उसमें ही इनका इन्वॉल्वमेंट होता था और कोई भी काम कभी ऐसा नहीं रहा जिसमें कि कभी ये कहने का अवसर मिला हो कि भाई ये इसमें ऐसा और हो जाता। जो आशा सी रहती थी उससे भी 1-2 कदम बढ़कर के स्वयं ही अपने आप को ऑर्गेनाइज करते रहे। ठीक उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई कार्यक्रम डेली ही इस विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म पे इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैंने तो एक दिन बल्कि इनको एक ये भी निवेदन किया था कि आप थोड़ा ज्यादा क्या उतना चीजें मतलब वो कैटर कर पाना है और झेल पाना सिस्टम जो वहाँ का सिस्टम है उस सिस्टम की वो भी देखे रहिए कि ताकि सिस्टम को ये महसूस ना होने लगे कि इतनी चीजें कैसे कैरी करें। तो कुछ ना कुछ रोजाना ही हम सुनने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इनकी तरफ से। मैं वैसे जानता भी हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो ये रहेंगे करेंगे जरूर, मानेंगे तो है नहीं तो करेंगे तो है ही है हमेशा कुछ ना कुछ, तो वो अच्छा लगता है। तो एक सौभाग्य का विषय है कि एक अच्छे ऐसे कुलपति आपके विश्वविद्यालय को मिले हैं। इससे पूर्व में भी हो सकता है अच्छे कुलपति वहां रहे होंगे बट वर्तमान में भी आपको एक बहुत अच्छे कुलपति मिले हैं। इसी अवसर पर अभी जो माननीय श्रम मंत्री जी के द्वारा जो बात कही गई उसमें उनकी बातों से ये लगता है कि वो भी अपने राजस्थान राज्य के प्रति प्लस अपने विभाग के प्रति जो और जो उनका जो विभाग जो श्रमिक की जो स्थिति है उसके प्रति उनमें एक बहुत ही उनका जो काम है या उनकी सोच है बहुत अच्छी सोच है और अच्छी भावना से रखते हैं अपने काम के प्रति। दूसरा मैं इस अवसर पर कहूंगा कि यहाँ जो हमारे आपके राज्य के बिना किसी पार्टी और या बिना किसी उसमें का वो रखते हुए आपके मतलब जो स्टेट है स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री जी है, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान में ही वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। मेरी जो हो सकता है मेरी जो भी सोच मेरी अपनी सोच है मतलब जो दूसरी जो सभी पार्टी वाले शायद इस सोच से सहमत हैं। ये भी एक सौभाग्य है कि एक इतने अच्छे और इतने जानकार और इतनी प्रदेश के प्रति इतनी सद्भावना रखने वाले मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं। साथ ही जो गवर्नर्स हैं उन गवर्नर्स में भी आपको बहुत मैं चूंकि उनको भी थोड़ा बहुत जानता हूँ यूपी से राजनीति से वो जुड़े रहे हैं तो बहुत उनसे मेरा व्यक्तिगत उस तरह परिचय तो नहीं है, लेकिन उनके जो वर्किंग है जो उनको विभाग में रहे, पहले यूपी में भी मिनिस्टर रहे फिर केंद्र में भी मंत्री रहे, तो बहुत ही सरल
और शिक्षा के प्रति बहुत ही सजग और एक सद्भावना पूर्ण व्यक्ति गवर्नर चांसलर के रूप में भी स्टेट को मिले हैं, वो एक बहुत, ये भी एक सौभाग्य का विषय है। और जो आपके विश्वविद्यालय के द्वारा इस कोविड में 1,31,00,000 की जो राशि का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत सराहनीय है। उसके लिए विश्वविद्यालय को बार बार आभार व्यक्त किया जाना चाहिए, जिला प्रशासन और गवर्नमेंट के द्वारा, और आपके द्वारा जो एक पहल की गई है, उम्मीद करते हैं कि उस पहल पर आगे अन्य लोग भी, एक यूनिवर्सिटी का मैंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का भी आपकी न्यूज में पढ़ा कि उन्होंने भी इसके बारे में शायद पहल की है कि कुछ कंट्रीब्यूट करने के विषय में, तो निश्चय ही वो आपसे प्रेरित होकर के, आपकी जो एक्टिविटी से प्रेरित होकर के वो भी आगे आए हैं, और शायद इससे और आगे और भी लोग आएंगे। और जो आज के जो श्रम मंत्री जी द्वारा बताया गया कि जो बीमा योजना प्रदेश में पहला प्रदेश है जिसमें इस प्रकार की योजना प्रारंभ की जा रही है, वो भी एक बहुत सौभाग्य और अच्छा विषय है। इस अवसर पर मैं अपने आपको इतना सब यही सब कहते हुए मैं विराम करना चाहता हूँ, और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया, मुझे अपनी बात कहने के लिए आपने आमंत्रित किया, और जो आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। Talking about the contribution of workforce in strengthening the country's economy and putting forward suggestions given the present pandemic situation to counter. Thank you, sir, for sharing your thoughts with us. कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, महिला सशक्तिकरण का प्रासंगिक दृष्टांत, अति सम्मानित अतिथि न्यायाधीश श्रीमती मालिनी त्रिवेदी अमूल्य समय के साथ हमारे वेबिनार से जुड़ी थी, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। श्रीमती मालिनी त्रिवेदी द्वारा विश्वविद्यालय परिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के समापन पलों में पधारे हुए अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु अधिष्ठाता विधि महाविद्यालय डॉक्टर राजश्री चौधरी से अनुरोध करती हूँ। डॉक्टर राजश्री चौधरी। नमस्कार। शिकागो में 1886 में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे परिवार व समाज के लिए की मांग हेतु आंदोलन में शहीद हुए श्रमिकों, जिन्होंने श्रम कानून बनाकर मजदूरों को अधिकार दिलवाए, उनको नमन करने एवं राष्ट्र निर्माण के आधार, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और विज्ञान के आविष्कारों व हमारे सपनों को मूर्त रूप देने वाले कामगारों को सम्मान देने हेतु मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस में आप सब ऑनलाइन सम्मिलित हुए। मैं आप सबका विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री कलराज जी मिश्र की, जो हमेशा हमारे पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपका संदेश मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण था और हम सबको सकारात्मकता प्रदान करने वाला था। धन्यवाद मान्यवर। हमारे अति सामान्य अतिथि न्यायाधीश श्रीमती मालिनी जी त्रिवेदी, आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभार। आपको अत्यंत आवश्यक कार्य से जाना पड़ गया। निश्चित रूप से हम आपके ज्ञानवर्धक उद्बोधन से वंचित रहे। हमारे विशेष अतिथि श्री यूएस तोमर साहब जी, पूर्व रजिस्ट्रार अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, आपने इस संकट के दौर में मजदूर की स्थिति, उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियां और उनके निराकरण का सचित्र वर्णन किया। आपके ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन के लिए मान्यवर आभार। हमारे विशेष अतिथि श्री जगदीश जी श्रीमाली, राष्ट्रीय सचिव इंटक, आपको अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किए और बताया कि कैसे और किन विषम परिस्थितियों का मजदूरों ने सामना किया और पुनः उठकर राष्ट्र निर्माण में लग गए। मजदूरों के संघर्ष को व्यक्त करता आपके संवेदनशील उद्बोधन हेतु बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे विश्वविद्यालय परिवार के संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरक माननीय कुलपति प्रोफेसर अमरिका सिंह जी का। आपके कुशल नेतृत्व एवं नवाचारों का ही परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय राज्य के सबसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में से है। आपके सहयोग से ही इस कार्यक्रम को आज हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए। आपका मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी प्रोफेसर हनुमान सिंह जी को, डायरेक्टर एफएमएस, प्रोफेसर पीके सिंह जी को, डीन कॉमर्स कॉलेज, जिन्होंने बहुत ही सारगर उद्बोधन प्रदान किया।
मैं आभारी हूँ विश्वविद्यालय के समस्त आचार्यों, प्राध्यापकों की जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। मैं समस्त कर्मचारीगण, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर अविनाश जी, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने तकनीकी रूप से इस कार्यक्रम का समर्थ किया है, डॉक्टर अल्पना सिंह और कार्यक्रम संचालनकर्ताओं को कुशल संचालन हेतु धन्यवाद। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। I take this opportunity to thank all educators, professionals and participants for taking time out of your day to join us for this critical conversation. Thank you so much, madam, for your words. A tree alone cannot make a forest. Let us all celebrate Labor Day to respect the hard work also of the people who as warriors are putting their all, including risking their own lives during this very critical hour. Please wear masks, get vaccinated, stay home, stay safe. On that note, I request everyone to stand in honor of national anthem. राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सभी गणमान्य से यथास्थान खड़े होने का अनुरोध है। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस संपूर्ण राष्ट्र और समाज की प्रगति, समृद्धि तथा खुशहाली में दिए गए श्रमिकों के योगदान को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिवार नमन करता है एवं नवीन संकल्प के साथ लक्ष्य निर्धारित करते हुए आप सभी का कोटिश धन्यवाद। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा।